Good morning, MSc students. Myself, Dr. Suman Sharma. Students, colleges are going to reopen after a long period due to COVID-19 pandemic. Now, you are welcome in the college following the SOP guidelines. Today, in this lecture, I want to explain a practical to determine the iodine value of an oil. Now, first of all, we know about what is iodine value. The iodine value of the substance is the weight of iodine absorbed by 100 parts by weight of the substance. Or we can say in another words, the iodine number equals the number of milligram of iodine required to saturate the fatty acids present in 100 milligram of the oil or fat. Oils rich in saturated fatty acids have low iodine numbers, while oils rich in unsaturated fatty acids have high iodine numbers, right? Now, क्या क्या चीज़ इसमें हमको रिक्वायर होती हैं, तो क्या क्या इसमें हम रिक्वायरमेंट्स जो है ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ द विच सॉल्यूशन. ओके. सेकेंड इज़ द क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड. थर्ड इज़ द 15% पोटेशियम आयोडाइड solution. Fourth is the 0.1 and sodium thiosulfate solution, and last is the starch mucilage or starch solution, right? So first of all, we know what is which solution, right? which solution क्या होता है? ये आयोडीन मोनोक्लोराइड को जब हम एसिटिक एसिड के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो विच सॉल्यूशन बनता है. आयोडीन मोनोक्लोराइड डिज़ोल्व्ड इन एसिटिक एसिड, उसको हम विच सॉल्यूशन का नाम देते हैं. इसको हम देखते हैं. आयोडीन मोनोक्लोराइड क्या होता है? आयोडीन मोनोक्लोराइड इज एन interhalogen compound with the formula ICl, right? It is a red brown chemical compound that melts near room temperature. Okay, because of the difference in the electronegativity of iodine and chlorine, ICl is highly polar and behave as a source of iodine plus, right? Here is the structure of iodine monochloride, ICl, right? It is the structure of iodine monochloride, and the IUPAC name of iodine monochloride is chloroiodine, right? तो इससे जो है हम विच सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट? तो ये हमारा विच सॉल्यूशन हो गया. फिर सेकंड हम इसमें क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट काम में लेते हैं. 15% पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाते हैं और 0.1 एंड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन बनाते हैं, और स्टार्च जो है वो इंडिकेटर के रूप में काम में लिया जाता है. ठीक है. अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो विच सॉल्यूशन है उसको कैसे बनाते हैं. द विच सॉल्यूशन में बी प्रिपेयर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड. फर्स्ट मेथड इज डिजॉल्व 13 ग्राम ऑफ आयोडीन क्रिस्टल्स इन 1 liter of glacial acetic acid, right?
Determine the normality of this solution using standard 0.1 N sodium thiosulfate solution, right? Pass the chlorine gas in iodine solution till the titration reading is doubled, right? When the chlorination is completed, the solution will acquire orange yellow color, right? जब solution का कलर ऑरेंज येलो हो जाता है तब हम ये कंक्लूड करते हैं कि क्लोरीनेशन कंप्लीट हो चुका है, राइट? तो ये तो एक मेथड हुआ जिससे कि हम विच सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट? एंड सेकंड मेथड इज weigh out 7.9 gram iodine trichloride and 8.7 gram iodine crystals in separate beakers, right? Add glacial acetic acid in both the beakers and heat on a water to dissolve, right? यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर 7.9 ग्राम्स आयोडीन ट्राइक्लोराइड को एक बीकर में लेते हैं और 8.7 ग्राम आयोडीन के क्रिस्टल्स को दूसरे बीकर के अंदर लेते हैं। फिर उसके अंदर हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड अलग अलग डाल देते हैं और उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, हल्का सा उसको हीट कर लेते हैं, राइट? Mix the two solutions and add sufficient glacial acetic acid to produce 1000 ml, right? जब ये डिज़ोल्व हो जाता है तब इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल करके इसको जो है 1000 ml तक मेकअप कर लेते हैं इन द आपका 1000 ml in the measuring flask, right? The resulting solution should be kept in a glass stoppered bottle and stored in a cool dark place, right? जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है उसको हम ग्लास स्टॉपर लगाकर उस बोतल को बंद कर देते हैं और इसको फिर हम एक डार्क जो है वो प्लेस के अंदर रख देते हैं जिससे कि डिकम्पोजिशन ना हो। दिस सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड फॉर 1 month और ये जो स्टॉक सॉल्यूशन हम बनाते हैं इसको हम 1 महीने तक काम में ले सकते हैं, राइट? फिर आता है इसका प्रोसीजर, किस तरह से इसको किया जाता है। Weigh out accurately about 0.3 to 0.4 gram of an oil sample and dissolve it in 25 ml क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है? सबसे पहले हमको जिस भी ऑयल और फैट का आयोडीन वैल्यू निकालनी है उसका 0.3 से लेकर 0.4 ग्राम सैंपल लेते हैं और उसको हम 25 ml क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। ट्रांसफ़र द सॉल्यूशन टू अ 250 ml ग्लास स्टॉपर्ड बॉटल, ठीक है? फिर इस सॉल्यूशन को हम ग्लास स्टॉपर्ड बॉटल 250 ml की जो ग्लास स्टॉपर्ड बॉटल है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं जिसको हम ग्लास स्टॉपर्ड बोलते हैं। देन एड 25 ml विच सॉल्यूशन, उसके बाद एंड शेक इट वेल, उसके बाद हम इसमें 25 ml विच सॉल्यूशन डालते हैं और उसको प्रॉपरली शेक करते हैं। कीप दिस सॉल्यूशन इन डार्क at a temperature of about 17 degree centigrade for 30 minutes, right? फिर इसको हम अंधेरे के अंदर रख देते हैं और जो एंड जहाँ पर की टेम्परेचर जो है 17 डिग्री
के आसपास होना चाहिए और वहाँ पर इसे हम आधे घंटे के लिए यानी 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन एड अबाउट 20 ml of 15% KI solution and 100 ml distilled water, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसमें 20 ml 15% पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन शेक करते हुए, स्टीयरिंग करते हुए ऐड कर देते हैं और 100 ml डिस्टिल वाटर मिला देते हैं, राइट। फिर हम इसको अच्छी तरह से शेक कर लेते हैं एंड टाइट्रेटेड विद N/10 सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इसको जो हमारा जो ये रिएक्शन जो मिक्सचर है इसको हम N/10 सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करते हैं जब तक कि सॉल्यूशन का रंग येलो नहीं हो जाता ना, टिल द सॉल्यूशन टर्न्स टू येलो, ओके। देन ऐड 1 ml ऑफ स्टार्च म्यूसिलेज एज एन इंडिकेटर, और फिर उसके बाद उसमें हम 1 ml स्टार्च म्यूसिलेज इंडिकेटर डाल देते हैं एंड कंटिन्यू द टाइट्रेशन, और फिर उस टाइट्रेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। नोट द ml ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। जितना जो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है उसको हम नोट कर लेते हैं और ये हमारा V1 ml का हम इसको नाम देते हैं, यानी जितना भी सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन कंज्यूम होता है उसको हम V1 का नाम देते हैं, ओके। रिपीट द अबव ऑपरेशन इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट विदाउट द ऑयल सैंपल एंड नोट द ml ऑफ N/10 सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, राइट। तो ये तो हमने विद सैंपल के साथ टाइट्रेशन करी थी और अब हम इस टाइट्रेशन को वापस से रिपीट करते हैं जहाँ पर कि हम ऑयल काम में नहीं लेते हैं। इट मीन्स इट्स अ ब्लैंक टाइट्रेशन, राइट। यहाँ पर और उसके अंदर भी जितना भी सोडियम थायोसल्फेट N/10 सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन कंज्यूम होता है उसको हम नोट कर लेते हैं और वो हमारा V2 वॉल्यूम हो जाता है, राइट। दो हमको रीडिंग्स मिल जाती हैं, एक तो ब्लैंक टाइट्रेशन के साथ और एक विद ऑयल के साथ। फिर फाइनली हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ओके। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन दे रखी है। आयोडीन वैल्यू इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इंटू N इंटू 126.9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू W, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं वेयर V1 क्या इज द ml of sodium thiosulfate solution required for oil sample, right। ये आपका सोडियम थायोसल्फेट कितना रिक्वायर्ड हुआ ऑयल सैंपल के अंदर, राइट। फिर दूसरा है V2 क्या होता है, ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ब्लैंक टाइट्रेशन, ठीक है। ये जो है ब्लैंक टाइट्रेशन के अंदर कितना सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड हुआ उसको हम V2 का नाम देते हैं, राइट। फिर N इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, इसलिए हमको सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं W क्या है, वेट ऑफ एन ऑयल सैंपल इन ग्राम, ठीक है। यहाँ पर जिस भी सैंपल का हमको आयोडीन वैल्यू ज्ञात करना है उसका एग्जैक्ट वेट लिखते हैं इन ग्राम्स के अंदर। ये नियर अबाउट 0.3 से 0.4 ग्राम के बीच में होना चाहिए। तो इससे हम आयोडीन वैल्यू किसी भी अननोन ऑयल की या किसी में अननोन फैट की निकाल सकते हैं, राइट। तो ये इसका कैलकुलेशन हुआ, ओके। ये हमने यहाँ पर बता रखा है, ये डिस्टिल वाटर है, ठीक है। ये आपका मेजरिंग फ्लास्क है, यहाँ पर हमने सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बनाया है, राइट। ये आपके जो है
कोनिकल फ्लास्क हैं और ये इन पे स्टॉपर लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमने टेस्ट जिसका कि हमको आयोडीन वैल्यू निकालनी है, राइट। ये क्या है यहाँ पर ब्लैंक के लिए जो है, ओके। और ठीक है, ये जिस भी हमको फैट या ऑयल का आयोडीन वैल्यू निकालनी है वो इसके अंदर रखा हुआ है, ओके। ये स्टार्च का सॉल्यूशन है, इसको हम ड्रॉपर से डालते हैं। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन है और ये है आपका आयोडीन मोनोक्लोराइड जिससे कि हम विच सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये हमने जो है जो भी सॉल्यूशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है उसको बता रखा है, राइट। तो ये आज हमने क्या डिस्कस किया है कि किसी भी ऑयल या फैट की आयोडीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, राइट बच्चों। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।